کا حساب دو، خون کا حساب دو۔ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ شبد پرہار، شبد پرہار کی مرد آباد، بلوچستان انتظامیہ، مرد آباد، بلوچستان انتظامیہ، مرد آباد، بلوچستان انتظامیہ، مرد آباد۔ دہشت گردی وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سامعین محترم، نومل کے غیور عوام اس ٹھٹرتی سردی میں کوئٹہ کے مظلوموں کے لیے یہاں جمع ہے۔ کربلائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ کربلا 10 دن ماتم کا نام نہیں ہے۔ کربلا اول محرم سے عاشورہ تک ایک رسم منانے کا نام نہیں ہے۔ میرے مولا نے تو حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے بتا گئے تھے یزیدیوں کو، جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی۔ ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورہ ہے، اور بالخصوص ایک طویل مدت سے کوئٹہ کی سرزمین لہو لہان ہے، اور آج نومل کی سرزمین سے ان غیور نوجوانوں اور مومنوں کی طرف سے میں اہل کوئٹہ اور ہزارہ برادری شیعان حیدر کرار، آپ کا صرف جرم یہ ہے کہ آپ نعرے حیدری لگاتے ہیں، آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ عشق حیدر دل میں رکھتے ہیں، آپ کا جرم یہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قوم سے خدا امتحان لیتا ہے جو قابل ہوتا ہے۔ کوئٹہ کی سرزمین اس قابل تھی کہ اتنا خون گرا کر مولا حسین علیہ السلام کو یہ بتایا کہ مولا ہم صرف زبانی شیعہ نہیں، اور آج ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم بے بانگ دہل سینہ تان کے کہتے ہیں کہ فخر ہے کہ اس کرۂ زمین میں ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ بے شک کوئی مائی کا لال آ کر دکھاؤ کہ ہمارے عقیدے کے برابر کسی کا عقیدہ ہو۔ ہم کسی کا عقیدہ سے چھیڑتے نہیں ہیں اور اپنا عقیدہ ہم چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یزیدیت کو مٹانے کے لیے ہزاروں کی ضرورت نہیں، سینکڑوں کی ضرورت نہیں۔ کربلا میں 72 مل کر قیامت تک یزیدیت کو مٹایا تو آج بھی اس زمانے کے یزید کے ناجائز اولاد، چاہے وہ سپاہ صحابہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ لشکر جنگلی کی شکل میں ہو، چاہے وہ داعش کی شکل میں ہو، چاہے وہ کہ کسی اور کی شکل میں ہو، یہ سب امریکہ اور اسرائیل کے ناجائز اولاد ہیں۔ بے شک ان کے دسترخوانوں پر ان کے دسترخوانوں پر بچی ہوئی ہڈیاں چوس کر پلنے والے چند زرخرید غلام آج پاکستان کو ایک بار پھر یعنی خون سے نہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ اتنی سخت سردی میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم آئے،
वज़ीर आज़म आए तो हम अपने छोदा को दफनाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं खान साहब, आप तो आपके साथ इसलिए हमने दिया कि आप तो करप्शन, जुल्म और उसके खिलाफ उठने वाले थे। वहां अपने जवान जनाजों को लेकर आपको बुला रहे हैं, ठीक है, आपने वजीर दाखिला को भेजा, आपने सब कुछ भेजा, इससे पहले भी बहुत से लोग गए हैं और दिलासे देकर वापस आए हैं। अगर तू वाकई जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए उठा है तो आज तुझसे इम्तिहान है, जाकर इनकी दिलजोई करो, वगरना पूरा पाकिस्तान जाम हो जाएगा। बेशक। और ये धरने सिर्फ कोयटे में नहीं होंगे, इंशाल्लाह आज के बाद गिलगित नगर होंजा, पूरे गिलगित बल्तिस्तान, कराची से लेकर बलोचिस्तान तक हम 5.5 करोड़ और 11.5 करोड़ पंजतनी सुन्नी और 5.5 करोड़ शियान हैदर कर्रार इस मुल्क में हम हैं, सारे पंजतनी हैं। ये दहशतगर्द तो मुट्ठी बराबर है। अगर हमें इराक की तरह और फिर किसी और की तरह हमें इजाजत मिल जाए तो एक दिन के अंदर इन लुटेरों को, इन बुज़दिलों को जो अपने बाप मुल्जिम की तरह पीछे से वार करना जानते हैं और सामने आकर मुकाबला ये नहीं कर सकते। आज कोयटा की एक खातून भी चीख चीख कर कहती है, अगर तुम मर्द हो तो आओ, तुम मुसाफिरों, मजदूरों और यानी बेकसूर पर हमला करके इनको जिबा करके ये तो साबित करते हो तुम यजीद के औलाद हो, लेकिन ये साबित नहीं होता कि तुम बहादुर हो। नहीं, तुमसे बढ़कर कोई बुज़दिल दुनिया में नहीं है। लिहाजा आप मिलकर, सब मिलकर दोनों हाथों को फिजाओं में बुलंद करके ये जवाब दे कि हम, अगर हमें बुलाया जाए, अगर हमें इसी तरह दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो हम इन सदाओं के साथ रुख करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ये आवाज जानी चाहिए इस्लामाबाद और उनके बाप दादा इसराइल और अमेरिका के व्हाइट हाउस तक ये आवाज जानी चाहिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये आवाज बिल्कुल कम है, ये आवाज यहां से आगे नहीं जा रही है। जिस कदर इश्क है हैदर कर्रार से, जिस कदर इश्क है मौला हुसैन से, अपनी सदाओं को बुलंद करके आज करबलाई होने का सबूत दे, आज हुसैनी होने का सबूत दे। हमारे लोग तो आज शोहदा के लिए उठना तो हमारा सेवा है। हम ना अपनी जमीन से लेकर देखें, हमारे ये नौजवान उस वक्त भी हमारे यहाँ चिलमशदास में थोड़ी सी उन्होंने हरकत की थी, वहां भी रात 2 बजे जाकर अपने यानी जिंदा होने का सबूत दिया है। तो ये करबलाई इन शोहदा के लिए आखिरी हद तक जा सकते हैं। कानून हम हाथ में लेना नहीं चाहते, इसलिए ये जुल्म सितम के खात्मा करो, होश के नाखन लो। हम करबलाइयों के साथ इस तरह छेड़ने की कोशिश मत करो, लेकिन आपसे भी 10 वस्ता गुजारिश है, इस जंगल में अगर जीना है तो भेड़ बनकर नहीं बल्कि शेर बनकर जियो, क्योंकि हमारा मौला शेर खुदा हैदर कर्रार है। लिहाजा यह आवाज बुलंद होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, और ये फलक शगाफ नारा इन यजीदियों के दिलों तक ये आवाज जाकर छुएगी इंशाअल्लाह। आपने दोनों हाथों को फिजाओं में बुलंद करके इस सख्त सर्दी के अंदर आपने जिंदा होने का सबूत, हुसैनी होने का सबूत, हैदर कर्रार के पैरोकार होने का सबूत दिया है। और ये नारा इतना बुलंद होना चाहिए जितना मेरा अली बुलंद है, जितना हैदर कर्रार बुलंद है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। और इंतजामिया सुन ले और हुकूमत पाकिस्तान सुन ले कि ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कराची के अंदर भी पुलिस गर्दी का सिलसिला शुरू होकर हमारे एक जवान का जनाजा इस तरफ आया है। देखें, एक ऐसा जवान जो सिर्फ पढ़ने के खातिर वहां गया था, मेहनत मजदूरी करके
फिर रातों को अपने मदद आप अपने गरीब माँ बाप के लिए बोझ भी नहीं बने थे और खुद पढ़ भी रहे थे और रास्ते में उसको गोली से उड़ा दिया। हम इस जलसे में उस पुलिस गर्दी को कराची में जो कुछ हुआ है शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हुकूमत वक्त से कहते हैं कि इनके कातिलों को फिलफोर के फर्क किरदार तक पहुंचाए, वरना हमने ये कहा। और खुसूसन मैं आपसे 10 बस्ता गुजारिश करूंगा, अगर ये वजीर आजम वहां जाकर उनके सर पर हाथ नहीं रखता तो हम समझेंगे कि आपकी बातें सिर्फ हवाई थी। आप दिल से किसी को यानी क्या फर्क पड़ता है, आप जाएं। हम जैसे गरीब लोगों की तरह तो आप नहीं जाते हैं, आप जाएंगे अपने उस हैसियत से वहां जाएंगे तो वो घराना जिसके घर में पांच अफराद शहीद हो गए हैं। बास खवातीन ऐसी हैं जो कहती हैं कि अभी उठाने के लिए कोई मर्द मौजूद नहीं है। आज जनाजों को उठाने के लिए बहनें कमर बस्ता हो गई हैं और यहाँ तक कि घर उजड़ गए हैं, उनका सहारा खत्म हुआ है। और फिर भी इतने दिनों से ये यही कहते हैं वज़ीर आज़म आए, तो फिर हमारे जो लोग वहां जाकर या वफाकी वजीर जाकर कहते हैं आप ये जिद न करें, ये जिद करेंगे क्यों कि ये एक मर्तबा नहीं हुआ है बल्कि कई मर्तबा इसी तरह इनको बहला फुसलाकर भेजा है। आज के बाद जब तक हकीकी तौर पर इनकी हिफाजत का आप वादा नहीं करेंगे, वहां जाकर पूरे पाकिस्तान के अंदर धरने होंगे, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा। लिहाजा इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अहले नौमल के गयूर जवानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बिल्कुल अभी हमने बुलाया था और इसी वक्त जो है लोग बेतहाशा जगह जगह से उठकर यहाँ जमा हुए हैं। इसी से आप समझें कि अगर ये इस तरह ये सिलसिला जारी रहा तो इंशाअल्लाह ऊपर हिस्पर से लेकर जाकर उस बॉर्डरों तक गिलगित बल्तिस्तान में हर जगह मोमिनीन उठेंगे और अपने मजलूमीन के साथ देंगे। और क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम की वसीयत है कि कूना लिज़्ज़ालिमी खस्मन व लिलमज़लूमी औना, मजलूम की मदद करो और जालिम के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ। और हम आज उस जालिम के खिलाफ खड़े हैं और आपसे ये कहते हैं अगर कातिल नहीं मिलता है तो हम समझेंगे कि कातिल खुद रियासत है। बेशक, क्योंकि रियासत के होते हुए कातिल का न मिलना 20 साल हो गए, मुसलसल कत्ल आम हो रहा है, कातिल नहीं मिल रहा है। आप कातिल मिल सकता है अगर आप चाहें, अगर नहीं चाहेंगे तो हम उस कातिल और आप में हम कैसे फर्क जाने कि कोई फर्क हमें नजर नहीं आता। इसलिए इन कातिलों को, इन दहशतगर्दों को, इनके बड़े मौजूद हैं इस वक्त जिन्होंने यानी शिया काफिर के नारे अपनी महफिलों में लगवाया और आपने देखा कि वो चांद भी वो देखते हैं। ऐसे जो करबला में हुसैन को नहीं देख सकते वो चांद को ख्वाब देखेंगे। इन मौलवियों को पकड़कर 4 यानी उनके थप्पड़ मारो तो पता चलेगा दहशतगर्द कौन है। इन मुफ्तियों का काम है जो मुफ्त आकर लोगों को फतवे देते हैं। लिहाजा आपसे 10 बस्ता मेरी गुजारिश है कि रियासत हम कानून हम हाथ में लेना नहीं चाहते, रियासत इस बात की नोटिस ले, वज़ीर आज़म जाकर इनकी दिलजोई करे। अगर इस नार न होने के सूरत में अगर कोयटा के वो मोमिनीन अपने जनाजों के साथ अगर बाहर रहेंगे तो हम अपने आप को घर में रहना जायज नहीं समझते हैं, हम भी रोड पर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आखिरी 5 मरतबा आवाज़ से बुलंद लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल कलबैन कलिबून।